Hello, and welcome back to the Medwicket. So we are at like the last day of the West Indies tour. T20 है होने वाला आज final, and no better day to finally have a report card of what the ups and the downs were from the whole series. So इसीलिए मैं और श्रेयांश यही सोचा था कि एक ups and downs का वो निकाल देते हैं कि let's see who were the big ups and who were the big downs from the whole series and what have we learned. Right, Hmm. श्रेयांश? Yes, sir. तो मतलब Starting with the starting with the first question, ups. Yeah, I starting with think the ups. the very obvious यशस्वी जायसवाल. मतलब what a debut, what a freaking debut by the person. कल का T20 ही ले लो या फिर टेस्ट मैच में सेंचुरी ले लो. I think he has proven himself to be a very reliable future contender for the opening spot. Future भी क्या? I think next year भी if रोहित शर्मा या फिर और किसी का डिक्लाइन आता है तो यशस्वी जायसवाल is a very very viable option in my opinion. The confidence in his cricket, the patience in his cricket, and the flair in his cricket was just amazing to see. Even yesterday, भाई the confidence in his shots, the T20 aggression, and उसी at the same time टेस्ट में जो उसने पेशेंस दिखाया, the moment he knew कि विराट कोहली स्ट्राइक पे आया, वो विराट कोहली की हर एक कॉल सुन रहा है, विराट कोहली को एक बड़े भैया की तरह वो बोल रहा है कि भैया 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 ये मेरे सामने आ रहा है. इट्स वेरी ग्रेट टू सी दैट कि एक यंग प्लेयर अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर रहा है एंड एट द सेम टाइम इतने एक्सपीरियंस से खेल रहा है. तो या यशस्वी जायसवाल नो डाउट बिगेस्ट अप फॉर द सीरीज इन माय ओपिनियन. Yeah, and moving on to the openers as well. My biggest up from the series is also a left-handed batsman, a left-handed opener. That is Ishan Kishan. मतलब talking about backups कि हम ये बोल रहे थे इंडिया backups नहीं बना रही थी. Right now, if anything happens to Rohit Sharma and Gill in the I मतलब होना नहीं चाहिए before the World Cup or the Asia Cup, we are very much sorted with Ishan Kishan. Rather the fact अगर राहुल नहीं आया तो हम किशन को टीम में इंक्लूड करके कीपिंग करा के खिला सकते हैं. And this guy will be ready to blast. तीन तो आई थिंक तो 50 ही मार दी थी इसने, उससे ज्यादा ही रन मारे हैं. ओडीआईज में दिखा दिया, T20 में देन अपने आप को प्रूव कर दिया. दिस गाय वाज ऑल ओवर ईटिंग द वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप एंड दैट टू इन मैचेस जहां बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे. बीच में एक ट्रू. मैच में हम ओपनिंग में ही ऑलमोस्ट 100 तक का टारगेट पहुंचा रहे हैं, 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप रख रहे हैं, बट उसके बाद हम कोलैप्स कर रहे हैं 140 के अराउंड. सो दैट इज व्हाट this guy had dominating was dominating in this series. And मेरे हिसाब से finally we have solutions to the opening solutions कि हम at least Asia Cup या World Cup में जाने के लिए we are not so concerned about our opening slots. ट्रू. मेरे लिए सेकंड अगर मेरे से तो पूछेगा आई थिंक कुलदीप यादव. Any match he has played in, any match he has given the chance to bowl, he has proven himself with the A for all stats. Second, with the way of his bowling. मतलब यार 4 wickets with the loss of given 6 runs. It's not easy to do that at all. लोग बोलेंगे तुमने टेल की विकेट ली है भाई, बट तुम्हें अगर याद हो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पाती थी. तो कुलदीप यादव इज इन माय ओपिनियन अ वेरी वेरी बिग अप फ्रॉम द सीरीज एज वेल. मैंने कल स्ट्रीम पे भी बोला था कि जो पूरन की विकेट लेगा उसको डब्ल्यूसी स्क्वाड में होना चाहिए. कुलदीप यादव अगेन, पूरन ने हमें हर T20 में परेशान किया था, हर एक T20 में परेशान किया था. एंड वी सॉ निकोलस पूरन कमिंग इन एंड कुलदीप यादव भैया बोलते हैं ऐसे कैसे, भेजो 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 भेजो. Exactly, and the best part is we are going to play the Asia Cup in the World Cup in the subcontinents. तो उसके पहले we have a prime spinner, we are ready. If we have the prime spinner with us, it has to be like True. obviously Kuldeep yeah, True, true, proved true. proved to that point. Now moving on to the another up. Yeah, I should say कि I don't see a lot of ups going into the series. Obviously because you should be dominating West Indies, जो हम Yeah. downs में जाके डिस्कस करेंगे. But one up major for me was बहुत लेट आया लेकिन सही टाइम पे आया when we needed that. That was सूर्य कुमार यादव. Yeah, भाई sure. सूर्य कुमार यादव ठीक है, ही वाज नॉट इन फॉर्म एंड ओडीआई में मे बी वो वर्क नहीं करा, लेकिन स्काई ने T20s में दिखा दिया दैट ही इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड. In देयर the इज अ T20, for रीजन ही T20, for sure. या आई एम ओके कि ठीक है वो ओडीआई में नहीं चल पाया बिकॉज यू आर एक्सपेरिमेंटिंग टू मच इन द ओडीआईज, बट इन द T20s if the team is not performing वो अकेला बंदा कैरी करेगा. And I know the next guy you are going to name is the one who complimented him for Yeah, the major part of it. Tilak But Verma. exactly. So Letting him my agree. point with Surya Kumar Yadav is back in form, and if ओडिया वर्ल्ड कप में भी अगर वो एक ऐसी ही गेम निकाल दे, इफ ही इज प्लेइंग, हम श्रेयस अय्यर नहीं आता है, कुछ होता है, देन वी आर वेरी मच सॉर्टेड भाई. वी कैन गेट एन True. T20 innings from Surya Kumar Yadav in ODIs and I will be very much happy with that. Yeah. As I said, उसने स्पॉइलर दे ही दिया कि नेक्स्ट मेरा अप वाज तिलक वर्मा. तिलक वर्मा की बेस्ट बात मेरे को ये लगी कि एक होता है ना डेब्यूटेंट नर्वसनेस, डेब्यूटेंट की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था.
Being very honest, that guy was playing as if वो 5 साल से इंडिया के स्क्वाड में हो. His shot selection, his temperament, his way of playing, his strike rotation as well was absolutely perfect in my opinion. The moment he started hitting those shots, सबने literally, I think मेरा Twitter पूरा भरा हुआ था. Do we have the next Suresh Raina with us? And that's a very, very huge compliment considering the fact the great legend Suresh Raina was in his time. At the same time, I would like to give it the shout out कि हम जब बुराई करते हैं तो करते हैं यार उनकी. But in test especially, we got the return of form of first of all Rohit Sharma. We had a century of Kohli Yeah. and the evergreen Ashwin. Exactly, and I'll just say before stating my last up from this, these players were actually looking for form और हमें वो फॉर्म मिल गई. मिला. Although हम डाउन में यही बात डिस्कस करेंगे कि तुमने कंटिन्यू क्यों नहीं करी ये चीज, Yeah. बट माय पॉइंट इज कि तुम बेस्ट चीज यही थी कि इन सब ने कहीं ना कहीं बैट से रन निकाल लिए. दैट इज व्हाट यू नीड एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर. एंड मूविंग ऑन टू माय जो लास्ट अप, दैट शुड हैव बीन मेरे हिसाब से तो श्रेयांश की लिस्ट का होता, बट इंडिया is India finally finding the left arm fast bowler that they were looking for? If not for this World Cup, if not for this Asia Cup, Arshdeep Singh looks ready for the T20 World Cup next year. He looks somebody who could complement a Bumrah, Siraj, or Shami, sure. whoever we go with, whatever lineup we go with, and he looks very deadly. जब से For वो आया sure, है, भाई. I know मुकेश कुमार उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए था. I know some other players were playing alongside him, but he was the standout. It was not so easy to get him out, and the way he was getting the wickets, just Yeah. length and bounce पे वो wicket ले रहा था ना, मेरे हिसाब से nobody else was ready to get the players out. And the names T20 में तो वेस्ट इंडीज के काफी बड़े बड़े नाम, पूरन, काइल मायर्स, ऐसे ऐसे नाम थे जिनके अगेंस्ट तुम विकेट लेके तुम actually you could be happy and you will get that confidence. Arshdeep is getting back. That is the biggest up for me. I'm not saying उसको वर्ल्ड कप अभी से ले जाओ, but next T20 वर्ल्ड कप he looks ready. For sure, for sure, for sure. Now His moving on to the variation, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अर्शदीप की वेरिएशन, मैं अर्शदीप के बारे में तो बोलूंगा यार. His variation, his confidence, and तुमने अगर देखा हो डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स नेल करना, it's such a huge thing. और इंडिया को चाहिए ऐसा बंदा कि जब चाहे यॉर्कर नेल exactly कर पाए. तो या exactly. टीम अर्शदीप फॉर रियल. And moving on to the downs now, I'll start with the first down. Maybe everybody in the comment section will agree with me. तुम्हारे जो टैगलाइन थी हर जवाब मिलेगा, तुमने और क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं. Yeah. दैट इज ऑब्वियस. तुमने आंसर तो छोड़ो, तुमने क्वेश्चन और बढ़ा लिया अपने लिए. क्योंकि जब हम टेस्ट से ओडीआई में शिफ्ट हुए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम आंसर्स ढूंढेंगे. अब तुम क्या करते हो, तुम रोहित शर्मा नंबर 6 भेज रहे हो, तुम कोहली को बैटिंग नहीं करा रहे, एंड अगले 2 गेम्स में तुम दोनों को खिला ही नहीं रहे हो. तो तुमने स्क्वाड में बाकी प्लेयर की पोजीशन क्यों खाई? साथ ही साथ नंबर 4 का आंसर यू स्टिल डोंट हैव इट. यू स्टिल डोंट हैव एन आंसर फॉर 5 या 6 पे कीपिंग कौन करेगा? यू हैव नॉट फाउंड दैट. तुम्हें ईशान ट्राई करना चाहिए था. तुम्हें सैमसन की फॉर्म बहुत ही खराब हो गई, तो मे बी वो भी एक डाउन अभी हम बोलेंगे. सो तुमने आंसर्स तो ढूंढे ही नहीं जो तुम्हें आंसर्स ढूंढने चाहिए थे. सो माय फर्स्ट विल बी, तुम और क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे. कि मतलब वही बात कि वर्ल्ड कप के पहले यू नीडेड टू हैव अ स्ट्रैटेजी. मतलब एक होता है ना कि तुम स्ट्रैटेजी देखते हो कि ये स्ट्रैटेजी से इंडियन टीम आगे जा रही है. वो चीज हमें नहीं दिखी. ईशान किशन ओपनर है, ओपनर ही खेलेगा, ठीक है, चलो एक तरफ. संजू सैमसन फॉर्म में नहीं है, फिर भी ईशान किशन ओपन खेलेगा. तो ईशान किशन को अगर तुम एक आंसर की तरह देख रहे थे, तो उस जो क्वेश्चन था उसके आंसर की पोजीशन में भेजा ही नहीं उसको. We still don't have a number 4, a Exactly. confirmed number 4. We haven't And tested or tried anything with that position. what's properly. your first down? My first down would be Hardik Pandya. Okay. Hardik Pandya. Hardik Hardik Pandya's Pandya as- captaincy and Hardik Pandya's arrogance and Hardik Pandya as a batsman as well, in my opinion. We haven't seen the same flair from Hardik Pandya ever since he's come back from the injury, in my opinion, in my very humble opinion. His captaincy, what should have been is versus what it is different. The negative of Hardik Pandya is his captaincy. Yeah. जो नेगेटिव फेस है ना हार्दिक पांड्या का उसके लाइफ में, उसके करियर में, वो उसकी कैप्टेंसी में ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है. मे बी His वो एरोगेंस arrogance, वापस आ रही है. yeah, that demeanor, that you know over confidence. मतलब फ्लैट पिच थी तो तुमने कल अपने आप को पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराई. वो अपने आप में कॉन्फिडेंस शो नहीं किया उन्होंने कि भाई मैं जाऊं बॉलिंग करूं. तुमने क्या किया, अपने स्पिनर्स को आगे रख दिया, और वो भी अक्षर पटेल जैसे पार्ट टाइम स्पिनर को तुमने आगे रख दिया कि नॉट अ पार्ट टाइम स्पिनर टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ पार्ट टाइम मतलब- स्पिनर नहीं है, बट पावर प्ले में ठीक यू है. कैन से कि स्पिनर को डालना Yeah. इज. एंड टॉकिंग अबाउट हिज बैटिंग एज वेल, ठीक है उसने एक गेम जिताई हमें एंड वी वर ओके कि वो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है, बट आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिज बैटिंग एज वेल.
Sure. स्पेशली इन द ओडीआईज. हम ओडीआईज वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. इफ यू आर दैट ऑलराउंडर फॉर अस एट नंबर 5 ना, आई वांट यू टू बिल्ड एन इनिंग्स मे बी एंड टेक इट टू द लास्ट. मतलब जो हमने कोलैप्स करा ना बीच में, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हार्दिक पांड्या. नाउ मूविंग ऑन टू माय सेकंड डाउन, आई वुड टेक द नेम जो हाँ एक बंदा जो अपनी पोजीशन वर्ल्ड कप के लिए परमानेंट कर सकता था. इट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. पूरा ट्विटर कहता था उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको पूरी भर भर की अपॉर्चुनिटी मिली एंड ही वेस्टेड एट. दैट इज संजू सैमसन. ठीक है भाई, बीच में बहुत अच्छे रन No आए. surprises here. क्या ऑब्वियसली लाइक बीच में कुछ थोड़े Cannot बहुत रन compare आए. with Samson. थोड़े बहुत 50s के आसपास भी तुम पहुंचे. यू वर डूइंग गुड. बट अगर तुम एक 100 मार के या फिर 250 लगातार मार के या फिर तुम एक अच्छा स्कोर बना के, मतलब तुम पूरे टूर्नामेंट में मिला के भी तुम 300 350 या उससे ज्यादा, मतलब 300 350 नहीं, उससे ज्यादा रन मार लेते, तो तुम कहीं ना कहीं नंबर 4 के जहाँ पे Contention में श्रेयस आते हैं. कंटेंशन नहीं है. आप श्रेयस अय्यर की फिटनेस आपको पता है कुछ भी नहीं है. नाउ यू हैव मेड इंडिया ओवर रिलाय ऑन श्रेयस अय्यर एंड तुम फिजियोस पे प्रेशर डालोगे भाई उसको फिट कर दो. हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है अब हमारे पास. श्रेयस अय्यर इज द ओनली आंसर एंड दैट टू कंसीडरिंग वो बंदा 8-9 महीने से क्रिकेट नहीं खेला. सो मतलब दैट इज गिविंग माय इट पॉइंट. गिविंग इट वो कि भाई ऐसा भी नहीं था कि उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली. हमने सेम टीम के अंदर ईशान किशन, संजू सैमसन खिलाया है यार. हाँ एग्जैक्टली यार. आपने ईशान किशन को नंबर 4 नहीं खिलाया. यू वर रिलाइंग नहीं ऑन संजू खिलाया. सैमसन टू टेक Yeah. दैट पोजीशन बट ही डिड नॉट टेक द प्रेशर. The Yeah. true. Mhm. So my next Next. down for this series will be again, as I said, the experienced players not continuing the form जो हमने बोला था. एग्जैक्टली. अगर आपको टेस्ट में रिदम मिल रही थी, अगर आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपना फॉर्म वापस मिल रहा था, आई नो हमने पॉजिटिव में वही बात करी, बट एट द सेम टाइम हमें इस वक्त ओडीआई में फॉर्म देखना था तुम्हारा. हाँ Virat Kohli playing his last ODI 6 months before the World Cup is not a good thing to do. एग्जैक्टली. Rohit Sharma not even opening once for the World Cup वाला टेस्ट ट्रायल तुम वो कर ही नहीं रहे हो. तुम सोच रहे हो कि एशियन कप में, एशियन गेम्स के अंदर, एशियन कप में सॉरी, वो कर देंगे, टेस्ट एंड ट्राई कर लेंगे, तो वो गलत है. We needed Agreed, to agreed. see Rohit Sharma and Virat Kohli here, और वो नहीं एंड हुआ. दैट तो in my दैट को एक opinion, 11 बना के खिलाते ना, तुम्हें क्या Yeah. करना चाहिए? तुम्हें 11 में आंसर सॉर्ट करने चाहिए थे अपने, exactly. कि 11 बना लिया, अब जो जो मिसिंग पजल्स है हम उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे. तुमने तो पूरी Exactly. लाइनअप में एक बस पजल कर दिया था. but वही. या एंड कंटिन्यूइंग टू दिस, माय थर्ड डाउन हम्म. विल बी कि द कंफ्यूजिंग अप्रोच जो तुमने एक्सपेक्ट करी फ्रॉम द मैनेजमेंट आइल से, नॉट जस्ट हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में, नॉट जस्ट रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, दोनों की कैप्टनसी में जो तुमने कंफ्यूजिंग अप्रोच लेके तुम चले. तुम लोगों ने नॉट जस्ट एक में कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना होता है, तुमने एक साइन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस एंड अनकॉन्फिडेंस तुमने दिखाया इन नॉट जस्ट टू द फैंस, तुमने वो पोर्ट्रे करा, बट टू द प्लेयर्स एज वेल. Yeah, sure. मुझे एक चीज बताओ, तुमने लास्ट 2-3 टी20 में ईशान किशन को तुमने रेस्ट करा दिया. व्हाट डज दिस मीन फॉर हिम? ऑल्दो ही हैज शोन एवरीथिंग कि वो बैकअप बनने के लिए रेडी है, लेकिन अब क्या तुमने उसका आंसर दिया उस बेचारे को? वो छोड़ो, तुमने पहले मैच में रोहित शर्मा और कोहली को बोला तुम बैठ जाओ, तुम लेट आना, तुम आना ही मत, तुम्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं चाहिए हमें. तो तुमने उस वजह से जो तुमने अक्षर पटेल भी नंबर 4 बीच में खिला दिया, तुमने हर चीज टेढ़ी मेढ़ी ट्राई कर दी, लेकिन जो तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए थी तुम खुद कंफ्यूज हो गए. मुझे नहीं पता, आई हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट फॉर लाइक सो लॉन्ग. मैं मोस्टली इंडिया की 11 में से 8 या 9 प्लेयर तो हमेशा प्रेडिक्ट कर ही लेता था, एंड इट इज नॉट जस्ट मी, इट इज एवरी क्रिकेट फैन जो प्रेडिक्ट कर सकता था एट द टॉस. इस बारी वी वोंट एवर एबल टू नो कि हमारा कैप्टन कौन होगा फॉर मेजर पार्ट ऑफ द सीरीज. मतलब हम इतने कंफ्यूज थे, एंड मुझे नहीं पता क्या वो कंफ्यूजन ऑब्वियसली प्लेयर्स में रिफ्लेक्ट होगी, डेफिनेट है वो. तो these were my downs. What is your last down? The lack of dominance. Yeah. जो टेस्ट में दिखी हमें, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर खेले, बट एक होता है ना यार, तुम वर्ल्ड एक उस टीम से खेल रहे हो जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुई है, उनका कॉन्फिडेंस लो है, उनकी मैनेजमेंट उनका साथ नहीं दे रही है. मीनवाइल बीसीसीआई, द बिगेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, तुम उस टीम के डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो, उस टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो, उस टीम के अगेंस्ट कोलैप्स कर रहे हो, उस टीम के अगेंस्ट भी हम लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस में मैच जीतने की कोशिश करें. इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन एट ऑल. The matches that should have been won with a team effort took individual brilliance from us to win them. I agree कि individual brilliance से matches जीतना अच्छी बात है. True. But at the same time, एक team effort होना बहुत जरूरी है. We are India. We are not Virat Kohli's India. We are not Rohit Sharma's India. We are India as a nation. We are not Sky's India. Exactly.
हमें एज अ टीम परफॉर्म करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर एक प्लेयर को लैप्स कर गया तो ये नहीं होना चाहिए कि तू जा मैं आ रहा हूँ। एग्जैक्टली। मेरे को वो डोमिनेंस जो हार्दिक पांडे की एक स्टेटमेंट थी ना कि इंडियन स्क्वाड में अभी भी इतना दम है कि हम दो टीम अलग बना के भी डोमिनेट कर सकते हैं, वो जो उसका कॉन्फिडेंस और जो ओवर कॉन्फिडेंस था जो टूटा है, इट वाज नीडेड, बट एट द सेम टाइम गलत हुआ। हमें डोमिनेंट, दैट स्टेटमेंट शुड हैव बीन ट्रू। या हमारे पास वो एग्जैक्टली। टैलेंट है, हमारे पास वी हैव द संजू सैमसन जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, वी हैव द जयसवाल्स, वी हैव द गिल्स एज वेल टू हैव बैकअप टीम्स डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, बट वी आर स्टिल फेलिंग टू डू सो। सो इन माय ओपिनियन उसके लिए वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Yeah, I agree. Matlab, these were the three ups and downs from us, both of us. Do let us know your ups and downs from the series. Still, T20I का final match बचा है आज. Let's hope we end the series with a win again here. यस सर। So, but this was what we had to say about the West Indies series. Do let us know your opinions. Do let us know what your friends think and what do you think. क्या हम गलत थे, क्या हम सही थे? And please add and subtract whatever you feel like to. श्योर। So, इससे ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए कि तुम क्लिक ही ना करो. I'll just end the video here. Shiraj, bye बोलो. बाय बाय। See you guys and the next time.